नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 16 डिजिटल। चले देखते हैं हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। With all the leaders of the Muslim community, there are a lot of questions or the queries or the ने कहा मेरी तकरीर में एजुकेशन मिनिस्टर को जो है चीफ मिनिस्टर चुनता नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर को खुदा चुनता है। मोहम्मद सनाउल्लाह साहब रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी नीपीआर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अब्दुल सलाम पत्ती की मेहनतों से उनकी टीम की मेहनत से ये मीटिंग हुई। कल्चर, इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं। इस पॉलिसी में इंडियन कल्चर का मतलब कंपोजिट कल्चर हुआ करती है। इस लेने के बाद उर्दू पढ़ने की गुंजाइश कतई ख़त्म ही हो गई थी। ये अंदेशे बहुत सता रहे थे कि अदालतें आपका दस्तूर हिंद के मुताबिक ही फैसला सुनाएंगी। डॉक्टर अश्वथ नारायण जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी लीडर्स के वास्ते बुलाए मीटिंग है। हमारे साथ इतना अच्छा बातचीत हुई एंड ऑलमोस्ट 3 आवर्स के लिए वो हमारे साथ बैठे रहे। हम सब चीज़ें हैं उर्दू अरबिक लेकर जो है लैंग्वेज का रुझान और उसकी बढ़ोतरी, उसको बढ़ावा देने के लिए ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೋಯಿತ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಅಜಿಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಾನು ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಂತ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸ್ಮಾಲ್ NGO ಕೈಯಿಂದ. I was part of the national framework to prepare the career guidance framework in India, invited by the Niti Aayog and the Ministry of Education in Delhi. I run an organization called Sigma, which works with students. State Minority Commission. Aga Sultan, former syndicate member of Bangalore University 2 terms. Also Vishweshwara Technological University 2 terms, and All India Council for Technical Education, Southwest Regional Committee. Professionally, I am a project manager. Abdul Azeem, Chairman Karnataka State Minorities Commission, former MLC. So, with regard to the national education policy, we had in a discussion with all the leaders of the Muslim community. They had a lot of questions or the queries or the concerns which were raised and which we are able to enlighten and respond to them. There is nothing to worry, and it was one statement. There is nothing against the constitutional enshrined rights of the minorities. So Article 28, 29, 30 has been clearly well taken, and whatever policies, benefits, welfare, reservation, whatever has been earmarked for the Muslim community, this all will be taken care. This policy is basically how education should be provided. That is the only thing we are trying to deal here, nothing else. So this concern was made very clear, and the freedom, privileges, and they were completely satisfied and happy. They are convinced with regard to the higher education, national education policy, and they will be having one more round consultation with the primary and secondary education with regard to the national education policy. any changes you will take after any changes? The changes, there is no discussion about the changes. Only thing is, whatever we are told, it should be implemented in the right and spirit.
वहाँ पे माइनॉरिटी मेंबर का होना ज़रूरी है, ये बात रखें। तो मैंने कहा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं अश्वत्थ नारायण जी, किसी स्टेट में जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है, मिनिस्टरों को चुनने की जिम्मेदारी जो है चीफ मिनिस्टर की होती है। मैंने कहा मेरी तकरीर में, एजुकेशन मिनिस्टर को जो है चीफ मिनिस्टर चुनता नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर को खुदा चुनता है, क्योंकि खुदा जो है ये पैगाम देना चाहता है, मैं कौन हूँ, ये मेरी कायनात क्या है। तो इसलिए ही इज़ द मोस्ट सूटेबल पर्सन। वही इंसान जिसको बोलते हैं दानिश्वर, उसके पास दो क्वालिटीज हुआ करते हैं, एक जो है पेशेंट हियरिंग, दूसरा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट। ये दो क्वालिटीज़ भी हमारे अश्वत्थ नारायण के पास हैं। जितने भी सजेशन दिए गए हैं एज ए चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स या सजेशन दिए हैं उसको ठीक तरीके से विदाउट बयास एग्जामिन करें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो उन्होंने जो है जवाब दिया, इंशाल्लाह करेंगे, और बहुत सारे जो कन्फ्यूजन थे उसको उन्होंने क्लियर किया है। हमारे मोहम्मद सनाउल्लाह साहब रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी DPR के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अब्दुल सलाम पुत्तिगे की मेहनतों से और उनकी टीम की मेहनत से ये मीटिंग हुई। और हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर अश्वत्थ नारायण भी बहुत प्रोएक्टिव हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, उनको एहसास है। यहाँ पे कई लोग पॉइंट्स प्लेस किए एंड जो भी प्लेस किए वो वैलिड थे। मैं एक दो तीन पॉइंट जो प्लेस किया वो बोलता हूँ। एक उनसे भरोसा चाहिए था कि आर्टिकल 30 को डाइल्यूट ना किया जाए। ये पूरा NEP में अगर इफ दे एनक्रोच ऑन द माइनॉरिटी राइट्स, फिर ख़त्म। मुस्लिम्स द माइनॉरिटी कम्युनिटी विल नॉट बी एबल टू कोऑपरेट विद इट। बट ही assured कि आर्टिकल 30 विल बी प्रोटेक्टेड एंड यू हैव एवरी राइट टू गो टू कोर्ट इफ इट इज़ नॉट डन, नंबर 1। नंबर 2, वेरियस कमिटीज़ हैं, नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन वगैरह वगैरह, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रांट्स कमेटी, NAC। तो हमारी मांग थी कि हर कमेटी में ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू बी गिवन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, लाइक दलित्स, माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस एज वेल एज लेडीज़। वो भी वो बोले हैं कि ही विल कंसीडर दैट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, सिलेबस फ्रेमिंग और नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी एक है, वो सिलेबस फॉर्मिंग एंड ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, करिकुलम क्रिएशन, वो क्या होगा। तो उन्होंने कहा सिलेबस विल बी द डोमेन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये मेरे 3 पॉइंट्स थे। हमने हायर एजुकेशन के मिनिस्टर साहब से सबसे पहले ये दरख्वास्त की कि दस्तूर हिंद यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 28, 29, 30 ये जो फंडामेंटल राइट्स में हुआ करता है, जो भी आपकी पॉलिसी होगी, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा इसी के दायरे में होना चाहिए, इससे हटकर नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये एश्योरेंस दिया कि वो ज़रूर ऐसा ही करेंगे और दूसरा उन्हें करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा हमने ये कहा कि ये जो आप इंडियन कल्चर की बात कह रहे हैं, इस पॉलिसी में इंडियन कल्चर का मतलब कंपोजिट कल्चर हुआ करती है, इसमें हर एक का हिस्सा हुआ करता है, सिर्फ एक स्ट्रीम नहीं बल्कि बहुत से स्ट्रीम होते हैं। इसलिए जो भी आप एक्शन लेंगे उसमें सब कल्चर को आप वही इम्पोर्टेंस देंगे जो इंडियन कल्चर को, एंशिएंट इंडियन कल्चर को दिया करते हैं। एक दूसरी बात हुई। फिर हमने ये उनसे यही कहा कि हम लोगों का ये जो शक है, डर है कि कोई एक कल्चर हम पर इम्पोज की जाएगी, उस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम ऐसा करने वाले नहीं हैं, ना हमारा ऐसा इरादा है, बल्कि एक हिंदुस्तान ऐसा है कि सब मिलकर इसमें चलने वाले हैं। तो हम सब मिलकर चलेंगे। जो भी आप लोगों को इस बारे में गलत फहमी है उस गलत फहमी को दूर करें। हम सब लोग ये कहें, हमारा इस पॉलिसी में ये मकसद नहीं है कि किसी एक कल्चर को किसी पर इम्पोज करें। तो मुतमईन हुए सर आप? हम लोग, मैं समझता हूँ बहुत सारी पॉइंट्स पर तो हम मुतमईन हो गए। देखना ये है कि जब ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो किस हद तक ये अपने वादों पर रहेंगे। जी हाँ, ज़बान के बारे में बात हुई और आज की मीटिंग पहले से मैं ये बता दूं कि कुछ अर्सा पहले से ये ख़बर बहुत मशहूर हो गई थी कि कन्नड़ा जो है वो कंपलसरी पढ़ना पड़ेगी और तालिब इल्म को 2 ज़बानें लेने का इख्तियार है। एक तो लाजमी तौर पर कन्नड़ा पढ़ेगा और ज़ाहिर है वो इंग्लिश पढ़ेगा।
तो इन दो ज़बानों के लेने के बाद उर्दू पढ़ने की गुंजाइश कतई ख़त्म ही हो गई थी। ये अंदेशे बहुत सता रहे थे। तो इस दौरान हमारी काफ़ी मीटिंग्स हायर एजुकेशन काउंसिल के मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ के साथ हमारी मीटिंग्स हुई और उसमें हमने ये ख़ास तौर पर ये इशू रखा कि माइनॉरिटी लैंग्वेजेस को अगर डिग्री कोर्स में ख़त्म किया जा रहा है तो ये बहुत बुरी पॉलिसी होगी, तो इसके ताल्लुक़ से आपको गौर करना चाहिए। आज की मीटिंग में एजुकेशन मिनिस्टर ने बहुत साफ अल्फाज में बताया कि कोई भी तालिब इल्म दो ज़बानें ले सकता है, लेकिन कन्नड़ा जो है वो सिर्फ पहले या दूसरे सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी। बाकी 3 सेमेस्टर में जो ज़बान जो उसकी मर्ज़ी हो, जैसे उर्दू है तो 3 सेमेस्टर में उर्दू पढ़ेगा या कोई दूसरी ज़बान पढ़ेगा, और इंग्लिश तो वो ले ही लेगा। तो कन्नड़ा अब कंपलसरी नहीं रही, बल्कि वो सिर्फ 1 सेमेस्टर तक महदूद है, जिसकी वजह से ज़बान की तालीम जो है मुतासर नहीं होगी। ये बहुत खुशाइंद ख़बर है हमारे लिए, वरना ये आम तौर पर ये अंदेशे सता रहे थे कि कंपलसरी कन्नड़ा की वजह से उर्दू हायर एजुकेशन में, डिग्री एजुकेशन में उसका ख़ात्मा हो जाएगा। इसी कोई सूरत हाल अब नहीं है। एजुकेशन पॉलिसी का हमने मुताला किया है, उसमें कई जगहों पर जो है ये अंदेशा ज़ाहिर होता है पढ़ने के बाद कि वाकई वो ज़ाफ़रानी रंग देना चाहते हैं तालीम को, और इसीलिए इसको बहुत उजलत में बहुत ज़्यादा बहस मुबाहसे के बग़ैर इसको लागू किया जा रहा है। और इन तमाम अंदेशों का हमने आला तालीम के जो वज़ीर हैं उनके सामने उनका इजहार किया, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो कि दस्तूर हिंद में माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को हासिल हैं, यानी 28, 29 और 30 दस्तूर हिंद के दफ़ात में जो भी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो गारंटीज़ हैं, जो ज़मानतें हैं, उनका पूरा लिहाज रखा जाएगा और उसमें किसी तरह की कोई दखल अंदाज़ी नहीं की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई दखल अंदाज़ी होती है तो हमें मालूम है कि आप कोर्ट को जाएंगे और ज़ाहिर है कि अदालतें आपका यानी दस्तूर हिंद के मुताबिक ही फ़ैसला सुनाएंगी। तो ये यकीन दहानी उन्होंने कराई है, लेकिन हमारे अंदेशे अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। यकीन दहानी एक अलग चीज़ है, जब अमल दरामद होगा उस पॉलिसी पर तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ हमको बाखबर रहना होगा, होशियार रहना होगा कि कहीं चोर दरवाज़े से कुछ ऐसी चीज़ें दाखिल ना हो जाएं जो कि हमारे कल्चर को, हमारी तहज़ीब को, हमारी सक़ाफ़त को और हमारी ज़ुबान को धक्का पहुंचाती हों। इसका हम देखेंगे। अब बहुत अच्छी हुई मीटिंग, हमको खुशी है कि वज़ीर तालीम ने बहुत इत्मीनान के साथ, गौर के साथ तमाम नुमाइंदों की बातें सुनी और उनके अपने तौर पर तशफ़्फ़ी पक्ष जवाब भी देने की कोशिश की। असल चीज़ जो है वो पॉलिसी पर अमल के दौरान क्या होता है वो असल चीज़ है, वो हमें देखना पड़ेगा। इसमें और बहुत से इम्प्रूवमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन आने के हैं। हमारी कम्युनिटी भी सपोर्ट करना और हमारी कम्युनिटी को यह है कि दूसरे बातों के ऊपर तवज्जो दिए बगैर अपने काम में, अपने जो उनका जो एजुकेशन है उसके ऊपर तवज्जो दिया तो बराबर है। या तो तवज्जो बातें के ऊपर तवज्जो, व्हाट्सएप के ऊपर तवज्जो देने से ज़्यादा वेबसाइट है NEP की, उसके ऊपर जाकर तो मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर सकती। और यहाँ पॉइंट भी निकली कि एज़ पर द जो दूसरे एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर आए थे, उन्होंने भी वो बोले कि ऐसा जो हमारा आर्टिकल 27, 28, 29 which gives a right of education, right of freedom of speech for minorities, protection to minorities, उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। अशरफ दारानोज बोले अगर से हमें वी कैनॉट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो भी NEP इम्प्लीमेंटेशन रहेगा इट विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। तो उसमें क्या भी अप्रेंटिस करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी इसका फ़ायदा उठाए, अच्छे से अच्छा एजुकेशन हासिल करे जो सबसे ज़रूरी है, और हमारी कौम को इसकी एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है। मैं गुजारिश है इसका फ़ायदा उठाएं। NEP के बारे में बता रहे थे कि इमीडिएटली 21, 22 में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, मगर यहाँ पे टीचर्स की कमी है।
minority institutions and other institutions also. Major issue क्या है हमारा minority institutions का, वहाँ पे टीचर्स की कमी है. इस वास्ते इमीडिएट अपॉइंटमेंट्स के लिए आप कुछ कीजिए. तो मिनिस्टर साहब ने बताया कि ये जल्द से जल्द इस इशू को लेके इस पर काम करेंगे और अपॉइंटमेंट्स का अप्रूवल देंगे बोल के बता के हैं वो. और रिजर्वेशंस के बारे में मेंशन नहीं बोल के मैं उनको बताई. माइनॉरिटीज़ के बारे में रिजर्वेशन के बारे में कुछ भी नहीं है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में. हाउ अबाउट रिजर्वेशन, तो उन्होंने बताया ये सेपरेट पॉलिसी के अलग ये है, उसमें ये टच नहीं करेंगे हम. जस्ट एज इट इज़ जो रिजर्वेशंस पहले थे अभी भी होंगे, अभी भी कंटिन्यू करेंगे. एंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो भी हैं माइनॉरिटीज़ के उसको टच नहीं करेंगे. हर एक जो मसला है आप जो लाए हैं, सो एवरीथिंग कम्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज आर ऑल, ये सब जो हैं आपके ये अप्रहेंशंस हैं. इंशाल्लाह ये दीज आर ऑल द थिंग्स वो जो हम कंसर्न है एंड हम इसे अमिकेबली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. एंड इवन उसके बारे में भी बताया कि जो NEP में जो इंट्रोड्यूस किए ही नया सिलेबस उसमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं. थोड़ा टाइम देना चाहिए टीचर्स को, पेरेंट्स को, मैनेजमेंट्स को स्टडी करने के लिए और उसके बाद आपसे फ्रीली फॉर्मली दे शुड कम एंड बात करने के लिए उनका मौका देना चाहिए. उनके ओपिनियंस और सजेशंस आप सबको लेना चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंटेशन बोल के ये सजेशन मैंने उनको दिया. तो वो भी मान लिए हैं. हमारे साथ इतना अच्छा बातचीत हुई एंड ऑलमोस्ट 3 आवर्स के लिए वो हमारे साथ बैठे रहे. हम सब के इश्यूज़ उन्होंने खामोशी से सुना और आखिर में हर एक इश्यू, हर एक कंसर्न जो सजेशंस हमने दिया उसके बारे में पॉइंट वाइज सबको रिप्लाई दिया उन्होंने. सो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मीटिंग थी. ये एजुकेशन मिनिस्टर इतना कंसर्न से, इतना पेशेंस से बैठ के हमारे साथ ऑलमोस्ट इतने घंटे बैठ के हमारे साथ डिस्कशन हुआ. वी आर वेरी हैप्पी विथ हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफिशियल्स ऑल्सो. तिम्मेगौड़ा साहब हुई ऑल्सो रिस्पॉन्डेड वेरी वेल बिफोर द मिनिस्टर आने के पहले हमको पूरा NEP के बारे में उन्होंने एक पिक्चर ड्रॉ कर दिया हमारे सामने. तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भी बताया कि क्या है NEP, कैसे इसके लिए हम तरक्की के लिए, स्टैंडर्ड्स बढ़ाने के लिए एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को आगे लाने के लिए मेजर इसका कंसर्न है. हम इनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं एंड सबको इक्वलाइज करना चाहते हैं. ये NEP के ज़रिए से कमर्शलाइजेशन जो है उसके लिए बढ़ोतरी होने जा रही है या फिर हो सकती है, तो उस खदशे को जो है सामने उनके रखा गया. साथ ही साथ जो है ऑटोनॉमी की जो बात NEP पॉलिसी बात करती है तो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड ऑटोनॉमी है. उसकी वजाहत भी जो है हमने मिनिस्टर साहब से मांगी, जिसके चलते कुछ चीज़ें आई. अलबत्ता बहुत सारा अगर डिस्कशन इसी तरीके से हुआ आगे चलते तो शायद वो कंसर्न्स क्लियर होंगे और शायद कुछ इम्प्लीमेंटेशन में जो खदशात हमें लग रहे हैं उसको जो है क्लियर करने के लिए दूसरा रास्ता जो है इख्तियार किया जा सकता. साथ ही साथ हमारी तरफ से ये बात भी आई कि जो है बहुत कम्युनिटी स्पेसिफिक अगर चीज़ें हैं, उर्दू अरबिक लेकर जो है लैंग्वेज का रुझान और उसकी बढ़ोतरी, उसको बढ़ावा देने के लिए जो है NEP में स्पेस नहीं है, उसके सिलसिले में भी जो है सवालात रखे गए. और साथ ही साथ जो है NEP के जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उसमें जो है RT एक बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद जो है एक एक्ट को लाया गया था जिसको इंडिया में एक वाटरशेड मूवमेंट माना जाता है एजुकेशनल सिस्टम में. तो उसको जो है साइडलाइन किया गया है और ऐसे एक्ट को जो है उसके चलते उसको ऐसे जो है इसके साथ में इम्प्लीमेंटेशन में लगाया जा सकता है, उसकी बात NEP नहीं करता. तो उस सिलसिले में भी जो है हमारी तरफ से सवालात, कंसर्न्स उठाए गए. इत्मीनान बख्श जवाबात तो नहीं मिले, अलबत्ता शायद आगे चलते ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के जो है अगर डिस्कशंस हुए तो हो सकता है एक बीच का रास्ता जो है गवर्नमेंट और पब्लिक के लिए बन सकता है. जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ गुफ्तगू हो, एक पब्लिक डिस्कोर्स बने, जिसके आगे चलते जो है इम्प्लीमेंटेशन में रद्द-बदल हो सकती है. ये थी हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट. इसी तरह ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ. मेज़बान मुसरत फातिमा को दीजिए इजाज़त.